नमस्कार इंडिया। लेह की इस पावन और ठंडी हवा के बीच गर्माहट लाने के लिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का फर्स्ट लेग आ चुका है, जहां पर खिलाड़ी जो है वो सिर्फ जज्बे के लिए नहीं, जुनून के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, देश के लिए खेलते हैं। जहां टेम्परेचर माइनस में जाता है लेकिन इंडिया का स्पोर्टिंग स्पिरिट वो बिल्कुल नीचे नहीं जाता है। एंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया है खिलाड़ियों के लिए जो सपने मौसम के हिसाब से नहीं देखते हैं, जो बर्फ को अपना प्लेग्राउंड मानते हैं। और इसी बर्फ पर हम देखने वाले हैं आइस हॉकी, वन ऑफ द फास्टेस्ट गेम्स इन द वर्ल्ड। और जब वर्ल्ड की बात हो रही है तो देखिए, ग्लोबली इस स्पोर्ट को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन बीते एक साल से इंडिया में भी अब इस स्पोर्ट का नाम बढ़ने लगा है। What a day it is, what a fantastic day it is for us to be here in Leh. Minus 12 degrees, that's the temperature that's inviting us to this beautiful landscape. And what a celebration of sport, winter sport in particular, it's going to be for us here over the next 6 days. बस चंद लम्हे में आयोजन होने जा रहा है उस ओपनिंग सेरेमनी का, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इस समय जो दर्शक हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं इस स्टेडियम के अंदर पहुंचे हुए। एरिना आमतौर पे ये यूज किया जाता है आइस हॉकी के लिए, और आइस हॉकी के एक्शंस आप देख सकेंगे ओपनिंग सेरेमनी के ठीक बाद। विजिट इस समय चल रहा है। श्री कविंदर गुप्ता जी हैं गवर्नर यूटी ऑफ लद्दाख के, और उनको इस समय उनको ये बताया जा रहा है उन सारे एथलीट्स के बारे में, उस हॉल ऑफ फेम के बारे में जहां पर कई खास एथलीट्स उसमें अंकित हैं, और उनके बारे में उनकी कहानियां जो रही है, ऐतिहासिक जो नतीजे रहे हैं, उनको फ्रेम करके रखा गया है और उसी के बारे में जानकारी इस समय दी जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी ऑफ लद्दाख। Welcome to all of you once again to the opening ceremony of the 6th edition of Khelo India Winter Games. With these words, now I request Secretary Sports UT Ladakh, Shri Moses Kunzang, JKAS, to kindly deliver the welcome address. On behalf of the UT administration and the sports-loving people of Ladakh, I extend warm welcome to all of you to this beautiful land of high passes, rich culture, and of late, a nation of sporting excellence. We are honored to host the 6th edition of Khelo India Winter Games ice events, and over the next 7 days, Ladakh will witness exciting and competitive action in ice hockey, speed skating, and figure skating. While you compete with the passion and determination, I hope you also experience the warmth, hospitality, and unique beauty of Ladakh. Organizing an event of this scale in extreme winter condition is a challenge, but every effort has been made to ensure the comfort, safety, and well-being of all the participants. From quality accommodation and efficient transportation to catering and medical facilities, we have tried to put in place the best possible arrangements. This year, the Games are being held under the inspiring theme of Swachh Khel, Swachh Ladakh, reaffirming our commitment to cleanliness, sustainability, and environmentally responsible sporting event. We believe the sports should not only build champions, but also promote responsible citizens. Over the years, we have continuously worked to upgrade our sporting infrastructure, and I'm pleased to share that our state-of-the-art ice hockey rink is almost complete, which is in front of you. Many more such facilities will be added in the coming years as part of our long-term vision to build strong sports ecosystem in Ladakh. Our aspiration is clear: to host both ice and snow events of Khelo India in the near future, for which we are also building up this key infrastructure. I take this opportunity to express my sincere gratitude to the Ministry of Youth Affairs and Sports for once again entrusting Ladakh with the responsibility of hosting these prestigious games, and to the Sports Authority of India for their invaluable technical guidance and continuous support. I also thank the national federations, state associations, clubs, and all the stakeholders whose dedication and hard work have made this possible. Once again, I warmly welcome each one of you and wish all the participating teams a fair, safe, and memorable championship. May this game strengthen the spirit of sportsmanship, unity, and excellence. Jai Hind, Julai. अभी आपके सामने होगा contingent parade of the participating states, followed by pipe band performance by the LSRC.
सरहद की निगरानी के साथ साथ इस तरीके के उत्तीर्ण प्रदर्शन के लिए लद्दाख स्काउट्स आर्मी के लिए ज़ोरदार तालियों की मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाहूँगी. Salute to every jawan of Ladakh Scouts and Army. Makes every crowd and when we talk about Khelo India ji bhar ke, we have a beautiful video for all of you. जो खेलेगा वही खिलेगा. हिम्मत दिखा, ताकत दिखा, हिम्मत दिखा, ताकत दिखा, कभी झुक मत, कभी रुक मत, चल खेल, चल खेल, चल खेल, चल खेल, तन से भी मन से भी भारत के लिए, वतन के लिए, चल खेल, चल खेल, चल खेल, चल खेल, तन से भी मन से भी भारत के लिए, वतन के लिए, चल खेल, चल खेल, चल खेल, चल खेल. हवा न बन तूफान बन जा, आग का एक दरिया बन जा, चल खेल, चल खेल. पूरब से आ, पश्चिम से आ, पूरब से आ, पश्चिम से आ, दक्षिण से खेल, उत्तर से खेल, भारत के लिए सब मिलके खेल. चल खेल, चल खेल, खेलेगा भारत, खिलेगा भारत, भारत, हाय भारत, दुआ भारत, हाय भारत, दुआ भारत, भारत के लिए सब मिलके खेल. चल खेल, चल खेल, चल खेल, चल खेल, चल खेल, चल खेल. These words, I would now like to request the Chief Secretary of UT Ladakh, Shri Ashish Kundra ji, to kindly deliver his speech. यहाँ के नौजवानों में एक जज्बा है और उनको स्केटिंग रिंक ना होने पर भी कोई छोटा सा पॉन्ड जो जम जाता है वहाँ पर भी आइस स्केटिंग करते हैं. अब हमको ये ठानना है कि लद्दाख के लोग जो कि ज़्यादातर भारतीय टीम में मौजूद हैं वो कैसे ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लेके आएंगे. बाकी आप सबको बहुत बहुत बधाई. मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा. Thank you very much. And now, ladies and gentlemen, we will have a beautiful exhibition match of ice hockey men's, where UT Ladakh versus Army. The Army in the red uniform, UT Ladakh in their white, beautiful white dress, coordinating with the white ice, are going to perform an exhibition match today, ladies and gentlemen. ये आपके सामने एक झलक दिखाया जाएगा. Welcome back to action, and we have a demo fixture coming up with two strong teams here. Union Territory of Ladakh, the hosts of this Winter Games, taking on Indian Army. Ladakh in their traditional reds, and then we have Indian Army at the other side. Both sets of teams getting on the ice. It's an exhibition game, but trust me, when it comes to the rivalry between these two teams, because this is also a replay of the finals from last year. In fact, both these teams had fought in the finals for the gold medal, the gold and the silver fixture. Ladakh had surprised everyone by defeating ITPB in the semi-finals. And well, is this going to be a revenge opportunity for the hosts? बिल्कुल विपिन, जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है और दोनों ऐसी टीमें जो एक दूसरे के खिलाफ खेलना जानती हैं और किस तरीके की रणनीति के साथ, ये वाइट पोशाक में जो टीम नजर आ रही थी वो थी लद्दाख की टीम और लाल रंग की जो पोशाक में है वो है टीम आर्मी. Right now we are set for the face off, the two centers in the rink as the ref is all set to drop the puck.
first exhibition match, the first taste of action on this beautiful new rink that we see here at the NDS Stadium in Ladakh. Face-off time, and off we go. Possession of the park right now with Indian Army right away. The two Ds at the back bringing up the ball, passes it off to the left wing. There's an opportunity right down the center. Can he finish? Oh, timely interception there. Beautiful move right down the middle, cutting through that ice brilliantly. Just not giving them any chance to settle, Indian Army, as Ladakh look to bring the puck from behind the rink. Quick outlet pass there, interception. Ladakh bring it up with the left wing, trying to zip through. Indian Army says nothing doing. This time round, no clear-cut opportunities for Ladakh like we saw in that first period, as the Army defense has held strong. Oh, there was an attempt there, but the period number 2 comes to an end in a jiffy. We didn't quite see the same kind of attempts that we saw in the first period. Well, we're going to have only 2 periods in this exhibition game, so the exhibition game comes to an end as we hear from the announcers. Beautiful exhibition game to give us an insight into how fast this game of ice hockey can really be. If you love this action, stay tuned, because when we come back at around 12:50, we will be watching the best of action coming up. Full 60-minute, 3-period action later on today as the competitions kick in. अंततः वो 0-0 के स्कोर पर समाप्त हुआ ये एग्जिबिशन मुकाबला, जहां बहुत सारा एक्शन देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद वो गोल आया नहीं। और लद्दाख के गोलकीपर नवाज अली ने वो प्रभाव छोड़ा, कुछ अच्छे बचाव किए जो मौके बन रहे थे। वैसे तो दोनों गोलकीपर्स ने अच्छे प्रदर्शन किए, लेकिन नवाज अली ने कुछ अहम बचाव किए और इसकी वजह से ये मुकाबला 0-0 पर समाप्त हुआ। आइस स्केटिंग की स्पर्धा इस समय एग्जीबिशन के तौर पर चल रहे हैं और इस दरमियान हम इस समय ये हिस्सा बन रहे हैं। आइस स्केटिंग की हम अगर बात करते हैं जब भी, तो वो 3 पीरियड में खेला जाता है आमतौर पर, और 3 पीरियड 20-20 मिनट के होते हैं। आइस स्केटिंग के अंदर जब भी हमने चर्चा की है तो यकीनन जिस तरीके से पिछला आयोजन हमने देखा था, कई प्रभाव छोड़ा था, और उस नयाना श्री एक नाम जिन्होंने 500 मीटर शॉर्ट ट्रैक इवेंट में हिस्सा लिया था और पहला स्वर्ण पदक जीता था खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के अंदर। वो 15 साल की लड़की ने, जो कि तेलंगाना से आती हैं, उन्होंने इतिहास रचा था और हैट्रिक बनाई थी स्वर्ण पदकों की पिछले आयोजन में स्पीड स्केटिंग के अंदर। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कुछ ऐसे ही प्रदर्शन की जरूरत है और वैसे ही नाम इस बार भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन नैना सूरी, उन्होंने जो वो प्रदर्शन किया था, क्या उस प्रदर्शन की पुनरावृत्ति इस बार भी होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। कल्चरल प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं, सांस्कृतिक झलक हम देखेंगे जहां पर इस ओपनिंग सेरेमनी है वो 4 चांद लगेगा।
What a stunning performance this was from these youngsters, getting onto the ice and just making sure that they wouldn't damage the ice with those mats, and the lovely three children there adding a different twist to that performance. जैसे यहाँ पे एक बहुत बढ़िया हमारे इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पे आइस हॉकी यहाँ पे एक रिंग बना हुआ है। मुझे उम्मीद है सर करगिल में भी हमारा ये आइस हॉकी रिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस साल उसको कंप्लीट करा के उसमें हमारे सिर्फ चिलिंग का काम बाकी है, तो करगिल को भी मौका देंगे, क्योंकि आपने देखा सर रिसेंटली हमारे वहाँ पे यहाँ आइस हॉकी का एलजी कप वहाँ पे मुनक़द हुआ था। तो हमारे खेल शायकीन जो है, ख़ासकर जो अभी नए जनरेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। जय हिंद, जय लद्दाख। और अब आपके समक्ष एक मंगलमय गीत, संगीत और नृत्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और अब इसके बाद मैं लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल श्री कविंद्र गुप्ता जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि वे आज के समारोह के समक्ष लोगों से संबोधित हो। श्री कविंद्र गुप्ता जी। पिछले 3 वर्षों से लगातार खेलो इंडिया विंटर गेम्स की होस्टिंग करना लद्दाख के लिए गर्व की बात है। ये इस बात का प्रमाण है कि देश ने लद्दाख की कैपेबिलिटी, कमिटमेंट और इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। इस वर्ष खेलो इंडिया विंटर गेम्स 7 दिनों तक आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका शुभारंभ आज से हो रहा है और समापन भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के पावन अवसर पर होगा। इन गेम्स के अंतर्गत सभी जो आइस इवेंट्स लद्दाख में आयोजित किए जा रहे हैं, इससे देश के 19 स्टेट्स, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी सभी भाग ले रहे हैं और प्रतियोगिताओं में आइस हॉकी, स्पीड स्केटिंग और फिगर स्केटिंग को भी शामिल किया गया है। मुझे विशेष प्रसन्नता है कि इस वर्ष पहली बार फिगर स्केटिंग को शामिल किया गया है और जो विंटर स्पोर्ट्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन होगा। आने वाले एडिशन में कर्लिंग को भी हम शामिल करने जाएंगे, जिससे इंडिया में विंटर स्पोर्ट्स और स्कोप अधिक व्यापक हो जाएगा। इन गेम्स से लगभग जो आज 1060 पार्टिसिपेंट्स शामिल हो रहे हैं, जिनमें एथलीट्स, टेक्निकल ऑफिशियल्स, सपोर्ट स्टाफ, वॉलंटियर सभी सम्मिलित हैं। ये बड़ी पार्टिसिपेशन इस आयोजन के बढ़ते नेशनल इम्पोर्टेंस और पॉपुलैरिटी को दर्शाती है। प्रिय साथियों, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अत्यंत आवश्यक है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि इन गेम्स के लिए 3 प्रमुख जो वेन्यूज़ हैं, एनडीएस आइस हॉकी रिंक, गुपुक पॉन्ड और लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर रिंक को पूरी तरह से तैयार किया गया है। विशेष रूप से 53.58 करोड़ की लागत से निर्मित 24/7 आइस हॉकी रिंक लद्दाख के स्पोर्ट्स हिस्ट्री में एक मेजर लैंडमार्क है और साथ ही कारगिल में भी एक और मॉडर्न जो हॉकी रिंक का कंस्ट्रक्शन कार्य भी प्रोग्रेस है और हम ये प्रयास करेंगे
इस साल वो भी कंप्लीट हो जाए। पहले जहां आइस हॉकी और स्केटिंग केवल 2-3 विंटर मंथ्स तक सीमित हुआ करती थी, अभी वह मॉडर्न फैसिलिटीज़ के माध्यम से हमारे एथलीट्स पूरे साल ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिससे उनके स्किल्स और परफॉर्मेंस में उल्लेखनीय इंप्रूवमेंट तो होगा ही। हाल ही में लद्दाख को अपनी पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी प्राप्त हुई है, जो स्कूल स्तर से ग्रास रूट्स टैलेंट्स आइडेंटिफिकेशन, वुमेन और पैरा एथलीट्स के लिए इंक्लूसिव स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, लद्दाख स्पोर्ट्स काउंसिल को मजबूत करने, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सरकारी नौकरियों में 4% रिजर्वेशन, एश्योर्ड स्कॉलरशिप्स, 100 करोड़ तक के कैश अवार्ड्स, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के विस्तार, एडवांस ट्रेनिंग्स, कोचेस के लिए इंसेंटिव्स, स्पोर्ट्स एजुकेटिव इंटीग्रेशन और स्पोर्ट्स टूरिज्म प्रमोशन पर केंद्रित है। ये पॉलिसी युवाओं को प्रेरित करेगी कि उन्हें प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में अवसर भी प्रदान करेगी। लद्दाख में स्पोर्ट्स और टूरिज्म का गहरा कनेक्शन है। क्लाइमेट कप फुटबॉल टूर्नामेंट, लद्दाख मैराथन और खेलो इंडिया विंटर गेम्स जैसे मेजर इवेंट्स ने स्पोर्ट्स टूरिज्म को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। इन इवेंट से न केवल यूथ को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बल्कि लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होता है और लद्दाख को नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहचान मिलती है। ये गेम्स हमारे यूथ को इंस्पायर करती है और वे विंटर स्पोर्ट्स को प्रोफेशनली अपनाते हैं। खेलो इंडिया जैसी इनिशिएटिव्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ग्रास रूट डेवलपमेंट्स और नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूत करती है। विशेषकर बॉर्डर और हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में इंडियन आर्मी और आईटीबीपी की पार्टिसिपेशन डिसिप्लिन, यूनिटी और नेशनल प्राइड की भावना को और सशक्त करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में भारत में स्पोर्ट्स कल्चर को एक नई दिशा मिली है। खेलो इंडिया इनिशिएटिव्स के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर जी ने यूथ एम्पावरमेंट, फिटनेस, स्पोर्टिंग एक्सीलेंस को नेशनल प्रायोरिटी बनाया है। विंटर स्पोर्ट्स को नेशनल फ्रेमवर्क में शामिल करना और लद्दाख जैसे रिमोट एवं हाई एल्टीट्यूड रीजन्स तक इंटरनेशनल लेवल इवेंट्स पहुंचाना उनके इंक्लूसिव और फॉरवर्ड लुकिंग विजन का स्पष्ट उदाहरण है। लद्दाख के यूथ को प्राइम मिनिस्टर जी का निरंतर जो इनकरेजमेंट है और सपोर्ट उनको मिल रहा है, जिसके लिए हम सभी उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर मैं विशेषकर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिसने एक बार फिर लद्दाख को इन प्रेस्टिजियस गेम्स को होस्टिंग करने का मौका दिया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को उनके कंटिन्यूअस टेक्निकल सपोर्ट के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, वॉलंटियर्स, आर्म फोर्सेस और सभी स्टेक होल्डर्स के टायरलेस एफर्ट्स को मैं सराहना करता हूं। अंत में मैं ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि लद्दाख शीघ्र ही इंडिया में विंटर स्पोर्ट्स हब के रूप में उभरेगा। मैं सभी एथलीट्स को उनके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि गेम्स स्पोर्ट्समैनशिप एक्सीलेंस और लाइफ लॉन्ग मेमोरीज को सृजन करेंगे। गर्व और उत्साह के साथ मैं इस छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स के उद्घाटन की घोषणा करता हूं। थैंक यू। जुले, जय हिंद। Well, those were some beautiful performances और इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के बाद तो देखिए एक ही सवाल बनता है that are you ready for the next 7 days, क्योंकि अगले 7 दिन होने वाला है इन एथलीट्स का असली टेस्ट। अगले 7 दिन मतलब नॉन स्टॉप एक्शन, अगले 7 दिन मतलब एज ऑफ द सीट ड्रामा, अगले 7 दिन मतलब विंटर वॉरियर्स अपनी हर एक लिमिट को तोड़ने वाले हैं। सो आर यू रेडी फॉर दैट? क्योंकि ये एथलीट्स इस बर्फ पर सिर्फ परफॉर्म नहीं करने वाले, ये सिर्फ स्केट नहीं करने वाले, ये एक कहानी बताते हैं अपनी मूवमेंट से।